Hello students, today our topic is networking, and in this lecture we are going to discuss about some protocols used in internet. So let's start. First of all, HTTP. This is Hypertext Transfer Protocol. Okay, so HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol, and HTTP offers a set of rules and standards which governs how any information can be transmitted on the World Wide Web. So basically, when we say that set of rules and standard, simply means that protocol. Okay, because protocol is nothing but only the set of rules and standard, or we can say that rules and regulations. So HTTP offers set of rules and standard which govern how any information can be transmitted on the World Wide Web. So this basically protocol is responsible for transmission of information on the World Wide Web. Third point, which is very important, HTTP provides standard rules for web browser and servers to communicate. So basically, HTTP decide how web browser and server communicate to each other. Okay, so HTTP basically a set of standard rules for both web browser and web server that web server to communicate. Next is it is an application layer protocol. As we know that it is an application layer protocol which is built on the top of the TCP. Or TCP structure is already discussed in our previous video. So let us take a quick revision of the TCP structure, TCP IP model. This is okay. This is TCP IP model. TCP IP model basically contain 4 different layers. First one is application layer. Next is transport layer. Next is network layer, and then data link layer. And from client side to server, when data goes, it receives in the order as first one is data link layer, then network layer, then transport layer, and then application layer. Actually, user only interact with the application layer. So basically all the protocols belongs to the category of application layer, or all HTTP is one of the example which um, basically is a application layer protocol. Okay, so come back to the point. So HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol, and it is an application layer network protocol which is built on the top of the TCP, as you can see on the we see on the diagram. Next, HTTP uses hypertext structure which establish the logical link between nodes containing text, and it is also called as the stateless protocol, as each command is executed separately without using reference of previous run command. So it is a stateless protocol. So these are the some points regarding to HTTP. If this question is asked in examination, you have to write your 4 points. First of all, the full form. HTTP stand for Hypertext Transfer Protocol. Okay. Second, uh, its purpose or its use. Basically, it is a set of rules and standard which governs how any information can be transmitted on the World Wide Web. That is a definition of HTTP. Okay. And third point regarding to HTTP is it provides standard rules for web browser and servers to communicate. And two other main important point, it is an application layer protocol and it is a stateless protocol. So I think now it is clear to all of you. So आई थिंक अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा HTTP अगर एग्जाम में आता है तो कैसे लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ द फुल फॉर्म ऑफ द HTTP. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. Next, its purpose. So basically it is a it is a set of rules and standards जो ये डिसाइड करते हैं, जो गवर्न करते हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड वाइड वेब पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी. हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन ही होती है आपकी टेक्स्ट की फॉर्म में, तो किस तरीके से ट्रांसफ़र होगी वर्ल्ड वाइड वेब में. और ये भी डिसाइड होता है HTTP के थ्रू. इसमें जो रूल्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वेब ब्राउज़र
मीन जैसे गूगल क्रोम एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, दीज आर द वेब ब्राउज़र, एग्जाम्पल ऑफ द वेब ब्राउज़र। तो ये और सर्वर आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। और दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट और हैं इसके बारे में। ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, ज़्यादातर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल ही है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा सब एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल ही। और ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। स्टेटलेस प्रोटोकॉल जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो भी कमांड इसमें एग्जीक्यूट होती है वो सेपरेटली एग्जीक्यूट होती हैं, उनका किसी प्रीवियस कमांड से कोई कनेक्शन रहता नहीं है, वो अपने आप में एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह बिहेव करती हैं। ठीक है, तो फुल फॉर्म याद रखना है आपको, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद आपको लिखना है एग्जाम में कि ये आपका सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा ट्रांसफ़र होगा। थर्ड पॉइंट आपको लिखना है इसके बारे में कि ये स्टैंडर्ड रूल हैं जो वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा ये बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है और लास्ट स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रोटोकॉल HTTPS। सो बेसिकली HTTP ही है इसमें, पर एक वर्ड और लग गया, ऐड हो गया इसके अंदर, और ये वर्ड है एस, दैट इज कैरेक्टर, दैट इज एस। तो व्हाट इज एस स्टैंड फॉर? एस स्टैंड फॉर सिक्योर। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा हम इसको डिफाइन करते हैं इस तरीके से। तो HTTPS को अगर आपको समझना है तो आपको करना क्या है, आपको HTTPS को इस तरीके से लिखिए, HTTP प्लस SSL। अभी SSL क्या है? SSL इज़ अ प्रोटोकॉल, अनदर प्रोटोकॉल, और फुल फॉर्म होती है इसकी सिक्योर सॉकेट लेयर। तो ये दोनों जब कंबाइंड होती हैं प्रोटोकॉल्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोटोकॉल का एक प्रोटोकॉल बनाता है HTTPS। देखिए HTTP ब्लू कलर में है, SSL ग्रीन कलर में है, तो इस तरीके से HTTPS लिखा गया है, तो एस यहाँ पर अभी भी ग्रीन कलर में है। ठीक है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये ध्यान रखिएगा इसका, HTTPS। तो HTTP प्लस SSL का कॉम्बिनेशन HTTPS है। तो HTTP के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। HTTP defines how messages are transmitted between visitor browser and website server। HTTP ये डिसाइड करती है कि मैसेज जो ट्रांसफ़र होगा, जो विजिटर का ब्राउज़र है उससे वेबसाइट के सर्वर पर किस तरीके से ट्रांसफ़र होगा, ये डिसाइड करने का काम, इसके लिए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ये आपके HTTP में होते हैं आपके। ठीक है, SSL में बेसिकली सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, सो इट प्रोटेक्ट्स एंड इनक्रिप्ट्स इंफॉर्मेशन सेंड अक्रॉस द इंटरनेट। तो जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू सेंड की जाती है उसको ये प्रोटेक्ट करता है और इनक्रिप्ट करता है इन्फॉर्मेशन को। इनक्रिप्ट करने का एडवांटेज ये रहता है कि कोई अदर पर्सन उस इन्फॉर्मेशन को रीड नहीं कर सकता, तो ये SSL का वर्क होता है। और जब ये दोनों प्रोटोकॉल्स को कंबाइन करके एक प्रोटोकॉल बनाया गया है तो उसको फिर हम बोलते हैं HTTPS। तो इट इनक्रिप्ट्स इन्फॉर्मेशन सेंड बिटवीन ब्राउज़र एंड द सर्वर। तो जो ब्राउज़र और सर्वर के बीच में अब जो इन्फॉर्मेशन सेंड की जाएगी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन HTTP में भी सेंड हो रही थी लेकिन अब वो सिक्योर वे में सेंड होगी, इनक्रिप्टेड वे में सेंड होगी। तो जितनी भी बैंकिंग वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वो सभी या ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, वो अभी HTTPS यूज़ करती हैं। तो HTTPS यूज़ करने का एडवांटेज ये रहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है तो सिक्योर रहता है। तो आपने देखा भी होगा कि वहाँ आपका HTTPS लिखा हुआ आएगा, ग्रीन कलर का लॉक भी होगा उसमें, लॉक भी होगा उसके साथ। तो ये HTTPS होती है जितनी भी आपकी वेबसाइट्स होती हैं। तो HTTP और HTTPS में यही फ़र्क होता है। देखिए सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें तो S स्टैंड फॉर सिक्योर एंड HTTP प्लस डेटा ट्रांसफर इन इज़ वेरी सिक्योर वे। जब हम सिक्योर वे बोलते हैं तो डेटा मस्ट बी इनक्रिप्टेड समहाउ, तो उसमें किसी न किसी तरीके से डेटा इनक्रिप्ट होता है, एंड देन जब इनक्रिप्ट हो गया एक बार डेटा तो फिर अगर कोई इस डेटा को रिसीव कर भी लेता है, देन ही कुड नॉट एबल टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द डेटा, और ही कुड नॉट एबल टू, हम कह सकते हैं कि वो फिर उस डेटा को, दैट डेटा इज़ मीनिंगलेस फॉर दैट पर्सन। तो किसी भी पर्सन जो उस डेटा को किसी तरीके से अगर एक्सेस कर भी लेता है तो उसके लिए उस डेटा को कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि डेटा एज इट इज़ उस फॉर्म में मिलता नहीं है उसको, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही मिलता है। ठीक है, वो सेंसलेस रहेगा उसके लिए। तो ये फिर ये हैकर्स यही काम करते हैं आपके डेटा को हैक करने के लिए, तो फिर वहाँ पर डेटा को सिक्योर वे में ट्रांसफ़र करने की एक रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो फिर HTTPS से ही फुलफ़िल होती है। इसलिए जितनी बैंकिंग वेबसाइट्स हैं वो सभी आपका वहाँ पर जो प्रोटोकॉल होती है उनमें जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो HTTPS के ही थ्रू होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम था बेसिकली।
HTTPS हेल्प फर्दर प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ योर विजिटर। तो ऐसा नहीं खाली सिक्योरिटी है, थोड़े प्राइवेसी की जहाँ तक बात है तो विजिटर की प्राइवेसी भी इसमें मेंटेन रहती है। पॉइंट और लिखा हुआ है इसमें, HTTPS मेक्स इट हार्डर टू हैकर्स टू ब्रेक द कनेक्शन एंड स्टील इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन सच एज द क्रेडिट कार्ड नंबर, एड्रेस, पासवर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। HTTPS के थ्रू ये रहता है कि जो भी आपके हैकर्स होते हैं वो कनेक्शन को ब्रेक करके इन्फॉर्मेशन को स्टील नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। और समहाउ उन्होंने कनेक्शन ब्रेक कर भी दिया और इन्फॉर्मेशन को उन्होंने एक्सेस भी कर लिया, तो भी इन्फॉर्मेशन को वो रीड नहीं कर सकते, अनरीडेबल फॉर्मेट में होगा क्योंकि वो ऑलरेडी इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। ओके, तो वहाँ जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर है, एड्रेस है, पासवर्ड है, क्योंकि इस तरीके अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर किसी ने भी हैकर ने को मिल जाएंगी तो वो आसानी से अकाउंट में से मनी विड्रॉल कर सकता है आपके। तो ये फिर HTTPS के थ्रू पॉसिबल नहीं है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो याद रखने का सिंपल सा तरीका है, HTTPS में वो सभी प्रॉपर्टी होती हैं जो HTTP में होती है। मतलब डेटा तो ट्रांसफ़र इसमें भी होगा जैसे HTTP अंदर हो रहा है, लेकिन एक सिक्योर वे के अंदर ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, सिक्योर वे की जब बात करते हैं तो इसका मतलब है प्रॉपर प्राइवेसी इसमें मेंटेन रहेगी। ठीक है, और डेटा प्रोटेक्ट भी होगा और इनक्रिप्टेड वे में ट्रांसफ़र होगा। तो ये इसका डायग्राम था, ये याद रखिएगा। HTTPS का ये जो डायग्राम है, ये जो फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा और इसी तरीके से लिख के आइएगा एग्जाम में, अगर ये आता है एग्जाम में लिखने को। HTTP + SSL = HTTPS, और यही डेफिनेशन भी लिखनी है आपको सेम। तो इससे एक क्लियर हो जाएगा कि HTTPS किस तरीके से वर्क करता है आपका। चलिए अब HTTPS के बारे में कुछ और पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। HTTPS स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, तो ये फुल फॉर्म है इसकी। ओके, इट इज़ अ हाईली एडवांस एंड सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP। तो HTTP का ही एक वर्जन है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी आता है कि HTTP और HTTPS में डिफरेंस लिखिए, तो उसका एक सिक्योर और एडवांस वर्जन है HTTP का। तो HTTP के जो बेसिक फीचर्स थे वो तो सभी HTTPS में है ही, प्लस सिक्योरिटी इसमें और ऐड कर दी गई है। नेक्स्ट, पोर्ट नंबर याद रखिएगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि पोर्ट नंबर, कौन सा पोर्ट नंबर डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो द पोर्ट नंबर दैट इज़ यूज्ड फॉर द डेटा कम्युनिकेशन इज पोर्ट नंबर 443। ओके, नेक्स्ट, इट अलाउज द सिक्योर ट्रांजेक्शन बाय एनक्रिप्टिंग द एंटायर कम्युनिकेशन विद SSL। तो अब जैसे मैंने बताया कि HTTP एस इज़ नथिंग बट ओनली द कॉम्बिनेशन ऑफ द HTTP पर SSL। तो SSL का जो काम है वो यही है कि वो डेटा को इनक्रिप्ट करता है आपका, तो और सिक्योर ट्रांजैक्शन को आपको एक तरीके से मेंटेन रखने का काम करता है, या ये सिक्योर ट्रांजैक्शन इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ट्रांजैक्शन फुली सिक्योर हो। तो अभी इसमें ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इट अलाउज अ सिक्योर ट्रांजैक्शन बाय एनक्रिप्टिंग द एंटायर कम्युनिकेशन विद SSL। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं अभी तक आपको बताता आया था, ये तो याद हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए आपको। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ SSL or TLS protocols and HTTP, and it provide encrypted and secure identification of a network server। तो वो पॉइंट रिपीट है यहाँ पर, encrypted और secure identification तो होता ही है इसमें। ठीक है, और ये कुछ नहीं होता बल्कि आप कह सकते हैं सिंपली SSL और HTTP का कॉम्बिनेशन होता है। कहीं कहीं ये TLS लिखा हुआ मिलेगा, ये भी एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो ये भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है ट्रांजेक्शन के लिए। तो HTTP इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। HTTP also allows you to create a secure encrypted connection between the server and the browser। तो जब HTTP, यहाँ HTTPS होना चाहिए, HTTPS allows you to create a secure encrypted connection between the server and the browser। तो ये एक सिक्योर कनेक्शन स्टेब्लिश करता है सर्वर और ब्राउजर के बीच में जब डेटा ट्रांसफर होगा, तो मतलब क्लाइंट मशीन से और सर्वर मशीन की तरफ जो भी होगा, ये एक सिक्योर कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा जिसके थ्रू डेटा की सिक्योरिटी मेंटेन हो सके। And it offers the bi-directional security of data. This helps you to protect the potentially sensitive information from being stolen। तो ये बाई डायरेक्शनल होता है, ये दोनों डायरेक्शन मूव कर सकता है, क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट। डेटा की सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है, और इस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को बेसिकली इंश्योर करता है कि वो किसी तरीके से मिसयूज़ ना हो। ये HTTP के बारे में कुछ पॉइंट्स थे। अब एग्जाम में अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, HTTP इज नथिंग बट ओनली द कॉम्बिनेशन ऑफ HTTP एंड SSL। ठीक है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तब ये एक प्रोटोकॉल HTTPS जो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, उस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है कि
आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनक्रिप्टेड वे में सेंड होती है, ठीक है। तो उससे होता है उससे एडवांटेज ये मिलेगा आपको कि जब इनक्रिप्टेड वे में सेंड होगी तो कनेक्शन कोई हैकर अगर ब्रेक पहले तो ब्रेक कनेक्शन ही ब्रेक नहीं हो पाएगा, और कनेक्शन अगर समहाउ ब्रेक हो भी जाता है तो देन इन्फॉर्मेशन जो है वो इनक्रिप्टेड वे में होगी, तो वो अनरीडेबल फॉर्मेट में होगी ऑलरेडी, उसका कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है लाइक दैट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एड्रेस, पासवर्ड, ये सभी इसमें सिक्योर वे के सिक्योर रहते हैं टोटली। तो ज़्यादातर बैंकिंग वेबसाइट्स HTTPS यूज़ करते हैं आपके। ठीक, नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स है इसके बारे में। पोर्ट नंबर 443 यूज़ करता है, और ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये SSL और HTTP का कॉम्बिनेशन है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये कुछ डिफरेंस कहा गया इसके अंदर कि HTTP और HTTPS में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको फुल फॉर्म लिखनी है इसकी। इट इज़ अ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP इज नथिंग बट ओनली द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, while HTTPS is a hypertext transfer protocol with secure. That is the full form of HTTPS. S basically इसमें secure को represent करता है। HTTP सिक्योर नहीं है और अनरिलायबल है, जबकि HTTPS सिक्योर भी है और रिलायबल भी है। HTTPS का URL स्टार्ट होगा वो HTTP से स्टार्ट होगा, इस तरीके से आप समझ जाइएगा। जब भी किसी वेबसाइट का URL आप देखते हैं उसमें अगर HTTP लिखा हुआ है सिर्फ, तो समझ जाइएगा कि वो सिक्योर नहीं है, जबकि HTTPS लिखा हुआ है तो वो सिक्योर है, ठीक है। यहाँ तक पोर्ट की बात करें तो ये पोर्ट नंबर 80 यूज़ करती है HTTP, और ये 443 पोर्ट यूज़ करता है आपका HTTPS। नेक्स्ट HTTP के बारे में लास्ट पॉइंट है, it is subject to main in the middle and eavesdropping attack, and it is designed to withstand such as attack and consider secure against such attacks। तो कुछ अटैक्स होते हैं आपके, ठीक है, जिसके थ्रू डेटा को एक तरीके से चुराने की कोशिश की जाती है नेटवर्किंग में, जो हैकर्स ट्राई करते हैं। तो वो HTTPS उस मामले में आपको पूरी तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, लेकिन HTTPS के केस में ऐसा नहीं है। चलिए ये डिफरेंस हो गया। कुछ और पॉइंट्स भी हैं। HTTP इज सिस्टम फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन ओवर इंटरनेट। तो HTTP का सिंपल वर्ड्स में कहें कि HTTP है क्या, तो HTTP एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी प्रोटोकॉल है जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर किस तरीके से ट्रांसमिट होगी, रिसीव होगी, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं। जबकि HTTPS नीड्स अक्रॉस द एड्रेस एक्सचेंज ऑफ द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द इनसिक्योर नेटवर्क। तो अगर इनसिक्योर इंटरनेट, तो इनसिक्योर इंटरनेट पर आपको कॉन्फिडेंशियल प्रोवाइड कराता है आपका HTTPS। तो ये फुल फीचर्स तो प्रोवाइड होते ही हैं इसके अंदर HTTP वाले, लेकिन इसके अंदर सिक्योरिटी मेंटेन होती है। HTTP इज अप्रोप्रिएट व्हेन नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नीड्स टू बी एक्सचेंज। तो जब कभी भी हमें नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सेंड करनी होगी तो HTTP से हम सेंड कर सकते हैं, सेंड होती है। लेकिन जहाँ सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, जैसे कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है, डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है, यूज़र नेम पासवर्ड है, तो वहाँ फिर HTTPS रिक्वायर्ड होती है आपकी। तो HTTP को कहाँ यूज़ करते हैं? यूज इन ब्लॉग्स, एंटरटेनमेंट इन आर्टिकल्स। जैसे हमें ब्लॉग लिखना है या एंटरटेनमेंट कोई मूवी है अपलोड डाउनलोड करना है, ये आपका, तो ये आपका HTTP वहाँ यूज़ होगा। और HTTPS कहाँ यूज़ होगा? फॉर फाइनेंशियल एंड अदर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन HTTPS विल बी राइट चॉइस। तो जहाँ कभी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा, कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही होगी, वहाँ HTTPS यूज़ होगा। नेक्स्ट इज यूज फॉर डेटा ट्रांसफर विद हेडर फ्रॉम क्लाइंट, एंड HTTPS विद इन SSL or TSL. Sub Tom Johnny invented the protocol. Netscape Corporation invented the protocol. Use port number 80. Use port number 443. SSL certificate is not used to communication. SSL uses SSL certificate for communication. अब ये पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं इसमें से काफ़ी, लेकिन एक पॉइंट न्यू है। अगर HTTPS को किसने इन्वेंट किया, तो सर टॉम टी जॉन ने इन्वेंट किया था HTTP को, जबकि नेटस्केप कॉर्पोरेशन ने HTTPS को डेवलप किया है। ये पोर्ट नंबर 80, पोर्ट नंबर 443 यूज़ करता है HTTPS। ये ऑलरेडी आपका डिस्कस हो चुका है पॉइंट। SSL सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, जबकि इसमें SSL सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। और HTTP कुछ नहीं बल्कि HTTPS HTTP और SSL का कॉम्बिनेशन है, तो ये भी याद रखिएगा। तो आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा। तो 4 to 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है
First of all, the definition, full form, then after that definition, एंड पोर्ट नंबर याद रखना है आपको, ठीक है। वर्क याद रखना है इसका। यूज़ क्या होता है, यूज़ सिक्योर, जहाँ आपको ब्लॉक्स वगैरह लिखने होते हैं या जहाँ पर आपको नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी होती है वहाँ HTTP यूज़ होता है, जहाँ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी होती है वहाँ HTTPS यूज़ होता है। तो HTTPS में ये जो एस है ये याद रखिएगा, ये इसका मीनिंग सिक्योर होता है, सिक्योर डेटा ट्रांसफ़र को इंश्योर करता है HTTPS। ये पॉइंट्स हो गए अभी आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के। अब बात करते हैं कुछ रिमोट लॉगिन एंड फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स की। तो लास्ट ईयर कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है टेलनेट के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चांसेस हैं इसके एग्ज़ाम में पूछे जाने के। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कि एग्जामिनेशन में प्रोटोकॉल्स तो डेफिनेटली आएंगी। 15 मार्क्स की यूनिट 1 है नेटवर्किंग, इसमें एक लार्ज पार्ट आपका प्रोटोकॉल्स कवर करते हैं। तो आई थिंक 5 मार्क्स तक का आपका प्रोटोकॉल्स आ सकते हैं और कोई भी प्रोटोकॉल 1 मार्क या 2 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। तो आपको फुल फॉर्म, डेफिनेशन, उसका यूज़ ये पता होना चाहिए। और अगर डायग्राम है तो अच्छा है, अगर आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कुछ कर सकते हैं उसके प्रोटोकॉल्स को, उसकी फंक्शनलिटी को समझा सकते हैं, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो फिर उसमें आपके मार्क्स कट होने के चांसेस नहीं रहते। तो टेलनेट लास्ट ईयर तो एग्ज़ाम नहीं हुआ था इसका, लेकिन उससे पहले टेलनेट पूछा जा चुका है आपका कई बार। तो टेलनेट क्या है? टेलनेट एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। टेलनेट की फुल फॉर्म है टर्मिनल नेटवर्क, ये याद रखना है आपको, टर्मिनल नेटवर्क। टर्मिनल में टीई और नेटवर्क का नेट, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो क्या, टर्मिनल का टीई और लास्ट एल और नेटवर्क का नेट, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा टेलनेट, टर्मिनल नेटवर्क। इस तरीके से याद रखिएगा। ये प्रोटोकॉल यूज़ किस लिए होती है? ये रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये फिल इन द ब्लैंक्स में और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इस तरीके से पूछा जा चुका है। विच ऑफ दैम इज अ रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल, 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे उसके अंदर। तो टेलनेट है, तो टेलनेट इज द करेक्ट चॉइस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल है। अब इस रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल का मतलब क्या है ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, पर ये एक पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल दैट इनेबल्स वन कंप्यूटर कनेक्ट टू द लोकल कंप्यूटर। ये एक ऐसी प्रोटोकॉल है जो एक कंप्यूटर को दूसरे लोकल कंप्यूटर से कनेक्ट करती है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर जो लोकल कंप्यूटर, इसका क्या मीनिंग है? कंप्यूटर विच स्टार्ट कनेक्शन नोन एज अ लोकल कंप्यूटर एंड कंप्यूटर विच इज़ बीइंग कनेक्टेड टू विच एक्सेप्ट द कनेक्शन नोन एज रिमोट कंप्यूटर। यहाँ पर दो तरह के कंप्यूटर होंगे, एक होगा लोकल कंप्यूटर जब कनेक्शन स्टेब्लिश होगा, और एक होगा रिमोट कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर जो कनेक्शन को स्टार्ट करेगा करना, वो लोकल कंप्यूटर कहलाएगा। और जिससे कंप्यूटर कनेक्ट और लोकल कंप्यूटर जिससे कनेक्ट होगा उसको हम रिमोट कंप्यूटर बोलेंगे, ठीक है। जो कनेक्शन को एक्सेप्ट करेगा, तो दो तरह के कंप्यूटर होंगे। पहला लोकल कंप्यूटर जो कनेक्शन को स्टार्ट करेगा, और सेकंड रिमोट कंप्यूटर जो कनेक्शन को एक्सेप्ट करेगा। तो दो कंप्यूटर हो गए आपके, टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर देयर which are involved in telnet, local computer and remote computers. Okay, next point देखिए। When the connection is established between the local and the remote computer during telnet operation, whatever that is performing on the remote computer will be displayed by local computer। अब ये important definition है इसका। तो एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया लोकल कंप्यूटर में और रिमोट कंप्यूटर में, तो होगा क्या कि उसके बाद रिमोट कंप्यूटर पर जो भी ऑपरेशन आपका परफॉर्म होगा वो लोकल कंप्यूटर पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब यही मैं कहना चाह रहा था आपसे, इसलिए मैंने लिखा भी था इट इज़ ए प्रोटोकॉल फॉर रिमोट लॉगिन। तो ये रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल है। तो अभी आप, एक आपका लोकल कंप्यूटर, एक रिमोट कंप्यूटर है। आपने लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया, जो भी आप रिमोट कंप्यूटर पर परफॉर्म कर रहे हो वो लोकल कंप्यूटर पर विजिबल होगा। और रिमोट कंप्यूटर कहीं भी हो सकता है, एनीवेयर, ठीक है। तो इसलिए उसे रिमोट कंप्यूटर बोलते हैं, कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं उसको। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है कि रिमोट कंप्यूटर पर आप जो भी कुछ परफॉर्म करोगे वो लोकल कंप्यूटर विजिबल होगा टेलनेट के थ्रू। टेलनेट रेस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टेलनेट ऑपरेटर ऑन द क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल, लोकल कंप्यूटर यूज टेलनेट क्लाइंट प्रोग्राम एंड द रिमोट कंप्यूटर यूज टेलनेट सर्वर प्रोग्राम। तो बेसिकली क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल को फॉलो करता है।
एक कंप्यूटर क्लाइंट की तरह वर्क करेगा, एक दूसरा सर्वर की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो जो भी कुछ रिमोट कंप्यूटर पर विजिबल है वो रिमोट कंप्यूटर पर जो भी परफॉर्म हो रहा है दैट इज़ विजिबल ऑन द लोकल कंप्यूटर। तो ये क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और इसमें जो लोकल कंप्यूटर है ये टेलनेट का क्लाइंट प्रोग्राम को यूज़ करता है, जबकि आपका जो रिमोट कंप्यूटर होता है ये टेलनेट सर्वर कंप्यूटर को यूज़ करता है। आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा टेलनेट के बारे में आपको। तो टेलनेट के बारे में दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल द फुल फॉर्म ऑफ द टेलनेट। टेलनेट स्टैंड फॉर टर्मिनल नेटवर्क एंड इट इज़ अ प्रोटोकॉल फॉर रिमोट लॉगिन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ अ प्रोटोकॉल फॉर रिमोट लॉगिन। तो रिमोट लॉगिन के लिए जो प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड होती है वो आपकी टेलनेट है, ठीक है। और टेलनेट में टू टाइप्स के कंप्यूटर्स इन्वॉल्व होते हैं, लोकल कंप्यूटर और रिमोट कंप्यूटर। लोकल कंप्यूटर कनेक्शन करना स्टार्ट करता है आपका। रिमोट कंप्यूटर जो होगा आपका वो एक्सेप्ट करेगा कनेक्शन को, और उसके बाद जो भी कुछ रिमोट कंप्यूटर पर होगा रिमोट कंप्यूटर पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो लोकल कंप्यूटर पर विजिबल होगा, इसीलिए इसको रिमोट लॉगिन बोलते हैं। और जो रिमोट कंप्यूटर होगा वो एनीवेयर इन द वर्ल्ड कहीं भी हो सकता है वो। तो इसके थ्रू हम लोकल कंप्यूटर पर डायरेक्ट डेटा देख सकते हैं जो भी हम रिमोट कंप्यूटर पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके लिए जो प्रोटोकॉल है वो है टेलनेट आपका। और ये क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है कुछ टेलनेट के बारे में। एक प्रोटोकॉल है FTP। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है FTP। और ये सभी जानते भी हैं, काफ़ी कॉमन प्रोटोकॉल है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जैसे नाम ही बता रहा है कि ऐसी प्रोटोकॉल जो फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है इंटरनेट पर, उसको हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोल सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स। डेफिनेशन की बात करते हैं, देखिए डेफिनेशन लिखी भी हुई है। FTP और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउस यूज टू ट्रांसफर फाइल बिटवीन टू कंप्यूटर अक्रॉस द इंटरनेट विदाउट इन्वॉल्विंग ईमेल। तो एक तो हम ईमेल के थ्रू फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन इन ईमेल को यूज़ किए बगैर अगर हम फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं इंटरनेट पर दो कंप्यूटर्स के बीच में, ठीक है, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ की जाती है या होती है वो FTP होती है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सब तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स में वो सब रूल्स होते हैं जो ये अलाउ करते हैं कि किस तरीके से दो कंप्यूटर्स के बीच में इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफ़र होगी विदाउट यूजिंग द ईमेल। ईमेल के लिए तो मैंने बताया था आपको सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है, ठीक है। लेकिन FTP जनरली आपकी इंटरनेट पर जब भी कोई फाइल ट्रांसफ़र होगी तो वो फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोटोकॉल होती है वो आपकी FTP होती है, सिंपल। इसलिए इसे बोला जाता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका नाम ही अपने आप में सब कुछ क्लियरली डेफिनेशन को बता भी देता है। तो आई थिंक याद करना काफ़ी आसान है। तो प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल्स है जो इंटरनेट पर दो कंप्यूटर के बीच में किस तरीके से डेटा ट्रांसफ़र होता है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है आपका ये FTP। कुछ और पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, द प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंजिंग द फाइल ओवर द इंटरनेट। तो ये पॉइंट अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। ये नेक्स्ट इज FTP वर्क्स ऑन द सेम वे एज HTTP फॉर द ट्रांसफरिंग वेब पेज फ्रॉम द सर्वर टू ए यूजर ब्राउज़र। तो HTTP कभी कभी ये भी आता है एग्जाम में कि HTTP और FTP में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से HTTP FTP से अलग है। तो एक तो ये याद रखिएगा कि FTP बिल्कुल उसी तरीके से काम करती है जैसे HTTP काम करती है, लेकिन वहाँ हाइपर टेक्स्ट का ट्रांसफ़र होता है, यहाँ फाइल का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो HTTP बेसिकली वेब पेजेस को ट्रांसफ़र करती है आपकी सर्वर को यूज़र ब्राउज़र से, जबकि FTP इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू डाउनलोड ए फाइल फ्रॉम ए सर्वर यूजिंग द इंटरनेट और टू अपलोड ए फाइल टू अ सर्वर। तो जब कभी भी आपको सर्वर से कोई फाइल डाउनलोड करनी हो या सर्वर पर कोई फाइल अपलोड करनी हो तो फिर वो FTP के थ्रू होगा, जबकि HTTP के थ्रू सिर्फ हाइपर टेक्स्ट का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो अभी डिफरेंस भी हम आगे देखेंगे। लेकिन जहाँ तक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की बात है तो फाइल का ट्रांसफ़र अगर हम इंटरनेट पर करना है, अब इंटरनेट पर ट्रांसफ़र होगा दो तरीके से होगा, या तो आप फाइल को अपलोड करोगे या फाइल को डाउनलोड करोगे। इन बोथ केसेस FTP इज़ यूज्ड, दोनों ही केसेस में FTP का यूज़ होगा। तो अगर हमको कोई फाइल सर्वर से डाउनलोड करनी है तो FTP का यूज़ होगा, और सर्वर पर अपलोड करनी है तो भी FTP का यूज़ होगा। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अब बात करते हैं FTP और HTTP में क्या डिफरेंस है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन FTP एंड HTTP इज दैट FTP इज ए टू वे सिस्टम. FTP can be used to copy and move a file from a server or a client computer as well as the upload or transfer a file from a client
टू ए सर्वर। तो जहाँ तक FTP और HTTP के डिफरेंस की बात है, तो FTP टू वे कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि इसमें हम फाइल को अपलोड और डाउनलोड दोनों कर सकते हैं। HTTP में ऐसा नहीं होता। HTTP ऑन द अदर हैंड इज स्ट्रिक्टली वन वे, इज ट्रांसफरिंग टेक्स्ट पिक्चर्स ऑन द अदर डेटा फ्रॉम द सर्वर टू ए क्लाइंट कंप्यूटर। जब हम HTTP को यूज़ करते हैं तो ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, सर्वर से ब्राउज़र पर डेटा ट्रांसफ़र होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र होता है। ब्राउज़र से सर्वर पर नहीं होगा इसके थ्रू, सर्वर से ब्राउज़र की तरफ होगा HTTP में। तो ये वन वे कम्युनिकेशन है HTTP, और ये टू वे कम्युनिकेशन है। HTTP में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर होता है, जबकि इसमें FTP में टोटल फाइल को अपलोड डाउनलोड दोनों ही कर सकते हैं सर्वर के थ्रू। तो ये बेसिक डिफरेंस था दोनों के बीच में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।